السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آج ہم اپنے شو کا آغاز اپنے پاپولر سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ سے کر رہے ہیں. ہمارے پاس مہمان ہیں آج کلیوپیٹرا فلم کی کاسٹ اور تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ. سن 48 قبل مسیح کا یہ واقعہ ہے. رومن امپائر جس کا توتی بولتا تھا اس دور میں، آج اس کے سربراہ جولیس سیزر ہمارے ساتھ ہیں. کلیوپیٹرا جن کے نام پر فلم بنی کلیوپیٹرا، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ایک عاشق نامدار مارک اینٹنی ہمارے ساتھ ہیں. سر کلیوپیٹرا کون ہے؟ آغاز کرتے ہیں ہم جولیس سیزر کے ساتھ. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ اجی ٹھیک ٹھاک، تھی سناؤ. آپ کی آواز ہے ہی ایسی. اچھا ہو کہ میں کھٹا پی لیا ہے. اچھا جی، آپ کلیوپیٹرا ہیں؟ جی. آپ مارک اینٹنی ہیں؟ کوئی شک ہے آپ کو؟ باقی مارک اینٹنی ہے یار. شکل اس کی بالکل رچرڈ برٹن جیسی تھی. ہم باہر سے لے آئے کہیں سے، وہ بول اس طرح رہا ہے. آفتاب تھوڑی عمر کنی؟ یہ تو جاگ نہیں، یہ تو اکثر صلح ہو جاتی. تمہاری آواز شروع سے ایسی ہے؟ پہلے ٹھیک ہوں سی نا. اچھا تو جنگ دے وچ ایک گھوڑا بیک ہو رہا سی، پیچھے کھڑا سی. اچھا جی، آپ کلیوپیٹرا ہیں؟ جی لگتی تو یہی ہے لیکن ہوں میں. اس کو بروٹس پر اتنا غصہ نہیں ہوگا جتنا مجھ پہ. بروٹس پہ غصہ کیوں نہیں؟ بروٹس نے قتل کیا تھا اس کو. ہاں سنے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ماریا سی. اس سینٹ میں جو سینیٹرز تھے اس کے ساتھی، انہوں نے خنجر گھونپے اس کو، تو یہ برداشت کرتا رہا. لیکن جب بروٹس نے مارا، بروٹس چونکہ اس کا بہت عزیز دوست تھا، پھر اس نے وہ تاریخی فکرہ کہا کہ یو ٹو بروٹس دین فال سیزر. جو شیکسپیئر سی نا تھوڑا بولا سی. کیا تھا؟ بولا بولا بولا. اج میں تسی نہیں ہو. چوتھی والی گل پوچھنا ہے. اچھا جی، بہرا کہتے ہیں، بہرا. بہرا ڈورا. شیکسپیئر یعنی بہرا تھا. اس ٹائم تو میں کچھ اور کیا سی، میں نے جو خنجر وجے نے. اچھا. میں کہا جی وہ میں مر گیا. میں بڑی آوازاں دیتی ہیں. وہ تو جب میں بروٹس نے مارے نا، پھر میں کیا کہ تم ہی انہوں نے رل گیا انی دیا. خنجر وجے نے لک تے ادھر ادھر تھپڑ بھی وجن سی، چھٹے بھی. اچھا وہ میرے بادشاہ نہیں بہنوں ہی سمجھ کے کٹ رہا سی. بروٹس نے ویسے انتہائی مجبوری کے عالم میں مارا تھا، کیونکہ ان سب نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا نا. بھائی اگر چلنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ رہو. بروٹس بڑا عزیز دوست تھا اس کا. بے ایمان بھی ہوا نا پھر. نہیں بے ایمانی وہ کہتا تھا. اس کے جو الزامات تھے نا اس کے اوپر، وہ بالکل ٹھیک تھے. یہ جو گلچھرے اڑاتا پھر رہا تھا، جس طرح یہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا چلا جا رہا تھا، یہ یکا یک اس کے اندر نا ایک ایسا ایمبیشن جاگ اٹھا کہ اس کو ماں سوائے اپنے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا. تو میں نے اس کو اپنے لیے نہیں، روم کے لیے مارا، کیونکہ اس کا مر جانا روم کے لیے بہتر تھا. اچھا، میری ٹریجڈی یہ ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں مارک اینٹنی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ جس ٹون اور ٹیمپو میں بات کر رہا ہے میرا دل ہی نہیں چاہتا. اور سر میں ایک ایکٹر ہوں اور میرے اندر ایک ویریشن ہے، ایک ٹونز ہے، ٹیمپو ہے سارا. میں آپ کو ہر جملہ ڈفرنٹ ٹون میں بول کے بتا سکتا ہوں. اچھا، کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ فمبل نہیں کرتے؟ اچھا جی، تسی بکرے کی بات کر لیں. جگت میں نہیں آتی کرنی، بڑی تھوڑی جگتا کر سکنا. اتنے بیٹھ آرام نال میرے سمجھاؤ. خیر بیٹا میں گل کر رہا بکرے نہیں ہے تو میری نقل لا رہا جی. کی بکواس ہو رہی ہے. یقین کرو تینوں پوائنٹ میں کلیوپیٹرا تم ہی گل کر رہے. دیکھیں آپ تمیز سے بات کریں، ان دونوں کے ساتھ مجھے شامل مت کریں. ڈھولکی بھی چاہتی جی سارے. نہیں، یہاں دونوں نے کلیوپیٹرا نو صرف کرنا سے رکھا. نہیں، وہ محبوبہ دونوں کی تھی اور ایٹ اے ٹائم تھی. اور اب کہہ رہی ہے میں ان دونوں کے ساتھ نہیں ہوں. اس کا تو کمال ہی ہر چڑھتے سورج کے ساتھ ہو جاتی تھی. اور انتہائی عاشق مزاج اور نہایت دل پھینک فراخ دل ملکہ اگر کو ہو سکتی کوئی اعتبار گارڈ نو رسپانس دے. دیکھیے آفتاب صاحب، حسن و جمال میری مجبوری اور اقتدار میری ضرورت ہے. اچھا، حسن و جمال کہتے ہوئے اس نے مارک اینٹنی کی طرف دیکھا اور اقتدار کے لیے اس نے جولیس سیزر کی طرف. حقیقت پسند ہے نا، ان پتہ خوبصورتی کدھر ہے، ان پتہ ہے. اچھا اینٹنی نا گلبرگ برف میں سارے واسطے بھی چاہ منگاؤ، آپ ہی پی جا رہے ہو. دنوں فلم کتاب لوگ سارے اتنے لے کے بج رہے ہیں. جی کلیوپیٹرا نو سپنے وڑیا سی نا، خودکشی کی تھی اس نے. اور اس دور کی بڑی مروجہ جو بڑی فیشنیبل خودکشی تھی
تو ایجپٹ میں ایجپشن کوبرا بہت مشہور ہوتا ہے، تو اس نے اس کی پٹاری میں ہاتھ ڈال دیا تھا، اس نے پھر کاٹا اس کو۔ اور سپ نے لیٹ کٹے اسی کیوں؟ پہلے ہاتھ پھاڑ کے بہ گیا۔ ویسے باقی فلم میں بھی کافی دیر سے کاٹا تھا اس کو۔ اچھا جی، آپ کا تعلق چونکہ ان دونوں کے ساتھ تھا، دونوں میں سے کس سے جدائی، کس کی موت کا زیادہ دکھ ہوا تھا؟ आफ्ताब साहब मुझे दोनों के जाने का ही बहुत दुख था। एक तरफ इक़्तिदार, दूसरी तरफ प्यार। ਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਵਾ ਕੇ? ਆਪਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਮੇਰੀ 1.5 घंटे ਤੋਂ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। क्लियोपेट्रा मलका मिस्र हो ना हो, मलका साजिश जरूर थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये पता है सीजर से मिलने किस तरह गई? ਸਰ ਮੈਂ ਡਾਕੀਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋगा। तुमने फिल्म भी नहीं देखी क्लियोपेट्रा? सर वो लंबी बड़ी सी, मेरे को देखी नहीं गई। शुक्र करो इसका जो पहला कट है तुमने नहीं देखा, 6 घंटे का था। ये फिल्म किसी वजह से फ्लॉप हुई थी। एक तो इसकी शूटिंग ने बहुत वक्त ले लिया, इसी दौरान एलिजाबेथ टेलर बीमार भी पड़ गई, फिर इसके सेट्स के ऊपर बेपनाह पैसा लगा। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बड़ी देर तक एलिजाबेथ टेलर का नाम रहा कि एक फिल्म में उसने 65 कॉस्ट्यूम्स तब्दील किए। और इस पर असल खर्चा पता है कहाँ हुआ? एक तो एलिजाबेथ टेलर ने बहुत पैसे लिए, 1 मिलियन की डील थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि अगर ये तबालत इख्तियार करती गई तो मेरा जिम्मा नहीं होगा, क्योंकि मैंने वीकली बेसिस पर आपसे पेमेंट लेंगे। अब चूंकि बीमार होगी, 6 महीने बीमार रही, और कानून की रूह से कंपनी को इतने पैसे देने पड़े। इसको माल्टा फीवर हो गया था। हैं? माल्टा फीवर, एशियन फ्लू भी उसे कहते हैं। ये 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो दिवालिया हो गया था। और एक दूसरा बहुत बड़ा खर्चा था कि जब रोम में लेके गया अपनी बीवी को सीजर, तो वहां पर उस दौर में एनिमेशन तो नहीं होती थी, वहां पर अगर राइटर ने लिख दिया ना हजारों का मजमा, तो फिर हजारों का मजमा दिखाना पड़ता था। तो उसने जब हजारों का मजमा इकट्ठा किया और एक जबरदस्त सीक्वेंस शूट किया, तो सर पकड़ के बैठ गया कि जी ये तो दोबारा करना पड़ेगा। तो सर ये सारा सीक्वेंस दोबारा क्यों शूट करना पड़ा? बस बदकिस्मती प्रोडक्शन कंपनी की। आपको यकीन नहीं आएगा कि एक आदमी की वजह से, एक एक्स्ट्रा था जो पता ही चंद डॉलर्स के बस काम कर रहा था, उसने जब देखा ना कि इतना रश है, किसी की नजर ही नहीं पड़ी, वो वहां पे आइसक्रीम बेचने लगी। और आइसक्रीम का स्टॉल जो उसने लगाया साफ नजर आ रहा है। इतने सब तो ज्यादा पैसे दे नहीं कमाए मैंने। एक वो, अब वो निकाला नहीं जा सकता था उसमें से। और दूसरा एक और बदनसीबी ये रही कि जब ये आई तो स्क्रिप्ट के मुताबिक लोगों ने क्लियो 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 के नारे लगाने थे, वो भूल गए, लिज लिज के नारे लगे। एलिजाबेथ टेलर था इसका नाम, और लोग इसके बड़े फैंस थे। लिज लिज के इतने नारे लगे, इतने नारे लगे, क्योंकि जी दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा वैसे तानू एलिजाबेथ टेलर की होज लगदी? मुझे कभी उसने इम्प्रेस नहीं किया। सर अज तक तानू सब तो सोहनी कौन लगी है? हॉलीवुड की फिल्मों, हाँ जी। जीना लोलो ब्रिजिडा। सच्ची ऐसे ना सुनिया ताड़े कोलों पर ये जिप्सी गर्ल थी, हंचबैक ऑफ नोटर डेम की, कुबड़ा आशिफ की हेरोइन थी। और भाई कितनी की देर है, मैं कपड़े वापस कर लेने। सर ये फिल्म एक और वजह से भी डिले हुई थी, अच्छा जी। क्योंकि जो फीमेल एक्स्ट्रास थी उनको मेल एक्स्ट्रास तंग करते थे। हाँ, वो कहती थी हमें छेड़ते हैं, जी बिल्कुल। और उनके लिए फिर गार्ड्स रखने पड़े थे। आज ही फिर गार्ड्स ने इतराज किया था कि ये सानू छेड़ते हैं। सर इन लोगों पर इतनी महंगी फिल्में बनी है, तो इनका कोई किरदार भी होगा, कोई कारनामे भी होंगे इनके। जूलियस सीजर एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था तारीख का। 30 कूंडे खाए ना जिंदगी। अच्छा पता है ये सबसे पहले सीजर के सामने आई किस तरह थी? इसने अपने आप को एक कालीन में रोल कर दिया। कालीन पेश करना था बादशाह को, सीजर को, तोहफे के तौर पर। मैनू मैनू हाँ, मैं भी दसो ना मैनू। इसको यकीन नहीं, कच्ची बस्ती का सीजर है ये। और जब उसको खोला गया कालीन को, तो ये रोल करती उसके पैरों में पहुंच गई। ते बादशाह नूं बस इन्ने च ही प्यार हो गया? बादशाह बड़े बेनियाज लोग होते हैं, कहते नहीं वो तो बादशाह है, बड़े फजूल लोग। बादशाह तो बादशाह होता है, पता नहीं किस बिना पर प्यार हो गया। अब जिस तरह जहांगीर और मेहरुन्निसा का वो वाक्य है कि उसके हाथ में कबूतर थे, तो एक कबूतर उड़ गया, तो उसने कहा ये कैसे उड़ गया? तो कहती है ऐसे, दूसरा भी उड़ा दिया उसने।
उसूली तौर पर तो उसे शक करना चाहिए था उसकी दिमागी हालत पे, लेकिन ही फेल इन लव विद हर, और वो फिर दुनिया उससे मलका नूर जहां के नाम से याद करती। सर उसे फिर कलीन में देखते ही इश्क हो गया? नहीं 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 नहीं, उसके अंदर एक अजीब सी रिगैलिटी थी। क्लियोपेट्रा ने कोई आइटम तो नहीं की? नहीं, शाहानापन था। उसने उसके बादशाह होने पे कोई उसे तो दरखोरे इतना ही नहीं समझा, उसकी एलिगेंस और उसका स्टाइल कायम रहा। बादशाह बेचारा इस पे लुढ़क गया। हाँ, बादशाह लुढ़क जाते हैं इन चीजों पे। बादशाह तो लुढ़कना से पैदा हुआ। तो सर ये अपने भाई की शिकायतें करने सीजर के पास गई थी? जी जी जी, अपने भाई को दर्दनाक अंजाम से दो चार इसी ने करवाया था, क्योंकि इसका भाई बड़ा गासिब आदमी था। वो बहुत छोटा यंग प्रिंस पटोलमी, बड़ा यंग था, लेकिन उसने हर चीज पे कब्जा पता क्यों कर रखा था? उसका जो मसाहिब था, उसका खास मुशीर वो जो ख्वाजा सरा था, जी जी, जिसे फिर बाद में सीजर ने तहतेख करवा दिया था, वो इसीलिए कि वो बहुत ही साजिशी था। वो फिर उसके कान पड़ता होगा सर उसकी बहन के बारे में। गलशन एडी तेरी बहन है ना, बड़ा गत्ते की चिड़िया लगाया था मुंह, यकीन कर बड़ी साजिशी हो। अरे ने कोई 11-12 ब्याह किए ने, ठीक है ना, तेरे माशाल्लाह काफी बहन हुई ने, और यकीन करे ने भट्ट साहब को भी प्रपोज कर दे। उन्हें ये नहीं पता एक टाइम च 5 मिनट दही खांदा, ਉਹਦਾ अपना शेर है। क्लियोपेट्रा बड़ा लच्छे सी चिड़िया का मुंह। एंथनी की है? एंटनी वो है भुल गया सी सारा, माती इन्नी वजी वेखो रंग केड़ा लाया सी। यार, वो आपसे मुखातिब, आप पिकनिक पे आए नहीं यहाँ पे? ना तो सही ला है, कभी उधर ना लेना कभी मेरा लेना है। और मेरी नकल ना लाया कर। एंथनी की जरे बख्तर चिड़ी है ना, वो बहुत ठंडी है। जरे बख्तर क्या होता है? सर की है कही था जिरा बख्तर। जीरा बख्तर। नीचे जिरा होती है, ये सामने जो है ये बख्तर है, और एक बख्तर हाथ में पकड़ते हैं, ढाल। इसको आर्मर कहते हैं, आर्मर। और सर जिहड़ा थाल जिहा हुंदा है, ये मूवमेंट इंज नहीं सिखाता, इंज करदा। क्यों? चौल पाने। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक और साथ ही वेलकम बैक। पति नजरात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और हम आज आपको ले चलेंगे हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट। सर बुदापेस्ट का मतलब क्या है? 2 अल्फाज का मुरक्कब है, बुडा और पेस्ट। बुडा का मतलब है पानी, और पेस्ट कहते हैं गर्म को, फर्नेस को। सच पूछे तो बुदापेस्ट को गर्म हमामों की सरजमीन कहा जाता है। सारे नाई नहीं होते जी? नहीं, सारे नहीं। यहाँ पर 80 चश्मे हैं गर्म पानी के, और उन चश्मों का पानी, उसकी बड़ी तासीर है। उसके अंदर केमिकल्स हैं, गंधक है, जिंक है। मिर्जे ने होते ले जी। तो हमाम का जो कॉन्सेप्ट है ये हंगरी की इख्तरा है। पहले रोम ने इसको अडॉप्ट किया, फिर पूरी दुनिया में ही पॉपुलर हुआ। तो सर उस तो पहले कटिंग कितों कराते सर? यार, तुम्हें किसने कहा कि हमाम सिर्फ कटिंग करते हैं? कमाल है यार। और कंप्यूटर से कराते। हमाम दरअसल एक बात है, आपको गर्म पानी का, नीम गर्म लूक वार्म वाटर का एक इंतहाई दिलफरेब बात है, जिसके साथ आप बड़ा अच्छा फील करते हैं, सेहतमंद फील करते हैं। तो चूंकि काम की नौयत ऐसी थी, लोगों ने कटिंग सलोन्स भी साथ बना लिए। सर कहा जाता है कि 16वीं सदी में तुर्कों ने हंगरी से सीखा था गर्म हमाम का concept। बिल्कुल, हंगरी करीब है ना। सर करीब कैसे हो गया? जर्मनी, फ्रांस वगैरह आने से पहले आपको ईस्टर्न यूरोप से होकर गुजरना पड़ा। ए मिर्जा साहब उत्थे जाए सर नान, उन्होंने और तेज करता पानी। अच्छा जी, ये शहर 3 छोटे छोटे कस्बों के मिलाप से बना है। 1873 में इसको यूनिफाई किया गया, यकजा किया गया, बुडा पेस्ट और अबूडा। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ चले भी गए ना, ਸਾਨੂੰ ना नहीं आना। ਅਸੀਂ पूछ लो यार जिसे नहाते नहीं। हंगरी की पार्लियामेंट यहाँ की अहम इमारत है, जिसका शुमार साइज के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी 3 पार्लियामेंट्स में होता है, और गिनीज बुक में इसका तस्करा है। इसके अंदर जो सीढ़ियां हैं, आप इसी से अंदाजा कर लें, अगर आप उनकी पैमाइश करें तो वो 20 किलोमीटर बनती हैं। 40 किलो सोना इसकी तजीनो आराइश पे लगा हुआ है। फिर एक इंतहाई कदीम चिड़ियाघर यहाँ पे वाक़ है। लो मिर्जा साहब ਤੁਹਾਡੇ आबाई पिंड का जिक्र हो रहा जी, रिएक्ट इंज करने जी में ओबामा का साल है। तो सर यहाँ का चिड़ियाघर भी बहुत बड़ा है।
बड़ा है, तो तकरीबन 1500 जानवर हैं यहाँ पर। मलका एलिजाबेथ ने बहुत सारे जानवर गिफ्ट कर रखे हैं। मलका ने टिकट लाई थी बल्कि बुकिंग की मलका पे बैठी थी। सर ये शहर खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत। किसी को ज़ौक है ना कदीम इमारतों का, पुरानी ईंटें, ओल्ड आर्किटेक्चर, तो बुडापेस्ट इंतहाई खूबसूरत है। फिर दरियाए डेन्यूब का किनारा, मेरा हुस्न जमाल है, वो तो इंसान खूबसूरत है। सर जिवें तुसीं दस रहे हो ना, सानू यकीन है कि इंसान बहुत खूबसूरत होती होंगी। ये खवातीन भी, बंदे भी खूबसूरत होते वैसे ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस तुसी ऐसा चलाओ। हैं। टूरिज्म एक ऐसा काम है जो होना चाहिए पाकिस्तान में। ये थोड़ा सा अमन अमान हो लेने दो। पाकिस्तान में तो ऐसी सैकड़ों जगह, आपका गिलगित बल्तिस्तान तो भरा पड़ा है, अब भी लोग जाते हैं। देवसाई का मैदान ही नहीं मान, आप उसे देखें आपको नशा आ जाए। स्कर्दू में वो प्याला नुमा पहाड़ और उसके अंदर झीलें। फिर दरिया सिंध का सफर पूरा, कारगिल से लेकर बहरा अरब तक, क्या खूबसूरत, पूरे का पूरा रास्ता उसका देखने वाला। सर ये दरिया ज्यादा खूबसूरत कहाँ कहाँ लगता है? वैसे दरियाए सिंध के बारे में ये गलत फहमी है लोगों की कि खूबसूरत है, इसकी दहशत है बड़ी। इन्हें मुझा रखी है। और अगर इसका ग्रैंडर आपने देखना है तो स्कर्दू से निकलते ही आप देखिए कि ये दरिया किस तरह हर चीज तहोबाला कर रहा है, कैसी सरकश लहरें हैं इसकी, कैसे चट्टानों के साथ टकरा रहा है। फिर दासू का मकाम, वहां पर बाकायदा तंग दर्रा है जहां से ये गुजर रहा है। उससे आगे थाकोट का ब्रिज, बड़ी दहशत है। आप उस ब्रिज पे जाके खड़े हो, पागल थाकोट का ब्रिज और फिर अटक का ब्रिज। फिर आगे आइए, फिर आपने इस दरिया की दहशत से आगाह होना हो तो कालाबाग जाइए, चश्मा जाइए। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਪੇਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ बुढ़ापे ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਉਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰ नहीं, वो दरिया डेन्यूब भी यूरोप का सबसे बड़ा दरिया है और 6-7 मुल्कों में से होकर जाता है। सर ये तो आप दहशत बता रहे थे, खूबसूरत दरिया कौन सा है? दरिया कुनहार बहुत खूबसूरत है, दरियाए स्वात बहुत खूबसूरत है, दरियाए झेलम बहुत खूबसूरत है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। यार कमाल कर रहे हो तुम। हनी कोई बात सेंसेबल भी कर लेने दिया करो। ਇੱਥੇ सर कोई इतने खान पीने की कोई चीज नहीं? गिलगित में नहीं सर, बुदापेस्ट में। वहां पे है चंद डिशेस बड़ी लाजवाब। हंगेरियंस कीमे के बड़े शौकीन हैं। क्यों जी ढाड़ी ने तो कीमा खा के उन्होंने आटा भी बन जाता। आहा। अच्छा जी, डिश है स्टेफानिया सिजलेट। ਕਹਿ ਹਜ਼ਰਾ जी स्टेफानिया सिजलेट। तो दाल पई है थोड़ी। इसमें कीमा, हाँ, अदरक, प्याज, टमाटर, धनिया, फिर उबले हुए अंडे कटे हुए। हाँ, दरिया जरा साइड पे करके ना तुझे अगे आ जाए। इन सब को एक पैन में बिछा दिया जाता है और फिर रखा जाता है अवन के अंदर। हाँ जिस तरह कीच बनती है, जिस तरह लजानिया बनता है। सर ये बीफ का बनता है जी। फिर है पंजीना पेपरिका। 5 रुपए की पंजीना। पेपर नहीं होती सर तुझे सीधे लफ्ज़ में क्यों नहीं डालते? भाई, जो नाम उन्होंने रखा है हम उसे तब्दील तो नहीं कर सकते ना। पंजीना पेटरिका। पेपरिका, पेपरिका, ये शिमला मिर्च के अंदर कीमा होता है। सर वो लोग होते होंगे वाकई ढाड़ी ने। और मरद सुनो तो सही की पे कहने ने इसमें टमाटर की पेस्ट होती है सुभान और उबले हुए चावलों के ऊपर डाल के खाते हैं। साडियां लाशां ही जानियां इत्थों। अच्छा जी, मशाहीर में जॉर्जेट पॉलगर, बड़ी मशहूर खातून, 15 साल की उम्र में ये नेशनल चेस चैंपियन बनी थी। और इसकी वजह शोहरत असल में वो बयान था जो गैरी कैस्परोफ ने इसके लिए दिया था कि मैंने इससे ज्यादा तगड़े असाब वाली कोई खातून चेस प्लेयर नहीं देखी। सर कीमे को पेस्ट पे लगाना है, क्या करना है? तो यार तुम कीमे से खाम खा मुतासर हो रहे हो। जो कीमा हमारे यहाँ पकता है घरों में, कितने सर कितने? आलू कीमा, कीमा प्याज, आहा, कीमा और शिमले की मिर्चें, मैं कह रहा 2-3 पतीलियां आगे रख लो। सर मटर कीमा और मटर भी जो नया नया आया हो छोटा, जिसको हम मटरी कहते हैं। कीमे वाले नान सर। कीमे वाले नान तो फिर स्टफी हो जाता है कीमे ना। वाला दही सर।
سر آپ کو بیسٹ یہی لگتا ہے قیمہ مٹر؟ نہیں، توا قیمہ، توا قیمہ جیسی لاجواب ڈش کوئی ہو ہی نہیں سکتی. نہیں جی، قیمہ کریلے بھی ہو سکتے ہیں. جی جی، کیوں نہیں ہو سکتے قیمہ؟ قیمے کی شامیاں، چھوٹا چھوٹا قیمے کی شامیاں، یہ کیا قیمے کی شامیاں؟ یار کس قدر پسماندگی ہے، قیمے کی شامیاں. ایک قیمے کا سکوٹر بھی بنا لیتا. پتا کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ قیمے کی ٹکیاں. ہاں سر قیمے میں اور کون سی سبزی ذرا پلیز؟ قیمے میں تم یقین نہیں کرو گے، ہمارے گھر ٹینڈے بھی ڈالے جاتے ہیں. ہے دیسی گھی میں قیمہ اور ٹینڈے ہاتھ لاجواب. سر قیمے کے تو کباب بھی بہت ہی اعلیٰ بن. کباب قیمے کے نہیں بنانے چاہیے. سیمنٹ سے بنا لیں. یار تم ریئیکٹ نہ کیا کرو. کباب مار کے سر پھاٹا ہوا ہے. شامی کباب جو ہے وہ قیمے سے بنانے کی بجائے آپ گوشت کے لوتھڑے لو پسندے، انہیں بوائل کرو، پھر انہیں کوٹو دوری کے اندر. قیمے میں آپ کو کیا پتا کہ اس نے پلے بھی ڈال دیے ہیں، اس نے چربی بھی ڈال دی ہو. کباب کی توہین ہے اگر یہ چیزیں اس میں. میں قسم کھا سکنا تو صرف بیسک کوکو اینکرنگ تھوڑا بھی دال لگا. حضرات will take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے میل باکس، جس میں ہم اہم سوالوں کے چھوٹے موٹے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں انتہائی مختصر پیرائے میں. جی میرا آپ سے سوال ہے کہ بھارت کی طرح ہماری حکومت بھی کوئی ایسا نظام کیوں نہیں لاتی کہ ہارنے والا الزامات لگانے کے بجائے اپنی شکست تسلیم کرے؟ اس کا تعلق پولیٹیکل کلچر سے ہے. آپ کا پولیٹیکل کلچر انڈیا کی نسبت بہت لو ہے. لو پولیٹیکل کلچر جہاں ہوتا ہے وہاں الیکشن جیتنے والا فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور ہارنے والا دھاندلی کا شور مچاتا ہے. ہماری خواہش اپنی یہی ہے کہ آپ بایو میٹرک سسٹم انٹروڈیوس کروائیے، آپ الیکشن کمیشن کو اس قدر اسٹرینگتھن کر دیں، اتنا آرگنائزڈ ہو، لاجسٹیکلی اتنی اسٹرینگتھ دے دیں. پھر میڈیا کے ذریعے اس بات کو عام کر دینا چاہیے کہ اپنی شکست کو بھی بڑے فاتحانہ انداز میں ایکسپٹ کرنا یہ بہت بڑی بہادری ہے. امریکہ میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جو ہی آپ ہارے فوراً کانگریچولیٹ کرتے ہیں، لیکن ناٹ آلویز. اگر کہیں کوئی چیز مشکوک نظر آئی، جیسے الیکشن چیلنج ہو گیا تھا، آپ کو یاد ہے بش کے دور میں، بش جونیئر کے دور میں چیلنج ہو گیا تھا فلوریڈا کا الیکشن، کیونکہ اس کا بھائی وہاں پہ گورنر تھا اور وہ آج بھی کنونسڈ ہے مخالف پارٹی کہ جناب یہ الیکشن ہم سے روب کیا گیا تھا. تو وہ اگر تو ثبوت مل جاتے تو پھر اور بات تھی. جی بلدیاتی انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی محض ایک صوبے کی جماعت بن کر رہ گئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بظاہر یہی لگتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار مت رہیے گا. پیپلز پارٹی آج بھی انتہائی آرگنائزڈ، بہت تگڑی پولیٹیکل ٹریڈیشن کی مالک سیاسی جماعت ہے، جس کی بنیاد چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو جیسے زیرک سیاستدان نے رکھی تھی. تو یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. گو کہ اس وقت یہ پارٹی اپنے مورال کے حوالے سے لوئسٹ ایب پہ ہے. کچھ عرصہ پہلے اس پر برے دن آئے تھے، مشرف کا دور تھا. بدترین دور وہ آیا جب ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے اور ضیاء الحق کی حکومت تھی جو دن بدن طول پکڑتی چلی جا رہی تھی. پیپلز پارٹی سرے سے نظر ہی نہیں آتی تھی. لیکن آج اگر آپ کمپیئر کریں نا تو مشرف دور سے بہتر ہے، ضیاء دور سے بھی بہتر ہے. کیوں؟ ایک صوبہ آج بھی ان کے پاس ہے، اور بلدیاتی انتخابات میں تو تقریباً کلین سویپ کیے انہوں نے وہاں پہ. ماں سوائے چند چھوٹی چھوٹی پاکٹس جیسے بدین ہے، اس پہ ذوالفقار مرزا چھا گئے، لیکن ان کا چھانا بنتا تھا. سیٹوں کی تعداد اگر سندھ اسمبلی میں دیکھیں تو 2008 میں جتنی سیٹیں تھیں 2013 میں اس سے زیادہ. اس لیے کوئی واقعہ، دوسرے کی نالائکی، کوئی انٹرنیشنل ایونٹ، کوئی نیشنل کیٹاسٹروفی، کوئی حادثہ، یہ کہا یار آپ کو بوسٹ دے دیتا. اچھا جی، کچھ سوال میرے پاس لکھے ہوئے بھی ہم نے آڈینس سے کچھ لے رکھے ہیں. مثلا نریندر مودی اور نواز شریف کی ملاقات بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ ملاقات ایک پراسرار سی تھی، انتہائی مختصر، اس بارے کوئی بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی. قیافے ہیں، اندازے ہیں، لیکن زیادہ دلچسپ بات اس حوالے سے جو ہے وہ باڈی لینگویج ہے دونوں لیڈروں کی.
अगर आप गौर से देखें तो मोदी साहब ने पहले हाथ मिलाया, फिर साथ बिठा लिया, वो लगातार बड़ी धीमी आवाज में नवाज शरीफ के गोश गुजार कुछ करते रहे, और मुझे महसूस होता है कि उन्होंने अपने मुंह पर जो हाथ रखा था वो महज इत्तफाकिया नहीं था, ही वॉज ट्राइंग टू हाइड हिज लिप्स, ताकि कोई उनकी लिप रीडिंग ना कर सके। तो यकीनन कोई हसास बात बता रहे होंगे। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? ये इसलिए कह सकते हैं जनाब कि साफ पता चलता है कि ये कोई परेशान कुन खबर थी। नवाज शरीफ के औसान खता होते नजर आ रहे हैं उसमें। सर को गंदी गल हो सकती मियाँ साहब शरीफ नहीं, मियाँ साहब खुद बड़े बजला संज हैं। सर लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि मियाँ साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे और उनके जो बैठने का पोस्टर था वो मोदी साहब की निस्बत बेहतर था। इसका जज हुकूमती नुमाइंदे नहीं होने चाहिए। इसका जज आप हैं, मैं हूं, वो है, जो देख रहा है वो इसका जज है। भले से हुकूमत उसके साथ एग्री करे ना करे। तो जो कुछ उस दिन हुआ व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं पर्सनल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं कि मुझे कुछ महसूस ऐसा हुआ कि मोदी साहब ने कुछ परेशान कुन बात नवाज शरीफ को बताई। नवाज शरीफ के चेहरे पर जो तासुरात है वो हरगिज किसी प्लेटिट्यूड्स के नहीं है। और सर मियाँ साहब ने कहा भी है कि हर चीज बताने वाली नहीं होती। इसमें भी एक पैगाम है जो मियाँ साहब दे रहे हैं किसी को। सर वैसे कुछ जादुई जी गल बात हो रही है। हाँ जी, करंट अफेयर्स का इल्म अगर आप जितना हो ना तो फिर ये जादुई बात ही लगती है। हो सकता मोदी साहब कह रहे हो मियाँ साहब इन्हें आज दाल पकाई शीश को आपके चक्कर जाए हो। मियाँ साहब बड़े शर्मीले आदमी ने सर। किसने कहा? इसने। तो फिर ठीक है यार, ये नरेंद्र मोदी अपनी जगह पर, वो साहब जो पीछे आके बैठे हुए हैं, हाँ जी हाँ जी, वो मिर्जा के साथ, वो कौन है और क्या कर रही हैं? सर आपने अभी तक जितनी बातें समझाई हैं वो इन दोनों को समझ आएंगी? तो जी यहो बंदे की जेब से लिपस्टिक निकलती बहुत अच्छे एक्टर है। अच्छा? एक ड्रामे से उन्होंने रांझे का रोल दिता सी, हीर बन गए। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दिनों रात वक्त हुआ है मुखबरनामे का और चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। बापे को बड़ा खुश है, बापे को मांग लो जो मंगना। और फराडिया तुम्हें किसी को क्या दे रहा है? तुम्हारी अपनी बसात क्या है? इन्नी औकात है तो दे भट्ट साहब ने दही का कूंडा। एक बाबा देखा मैंने जिसका अपना घर का हाल बुरा, एक बेटे की आंख नहीं, एक का बाजू नहीं, एक की टांग नहीं। ये डिलीवरियां तोरा बोरा चो अच्छा तुसी इन्ने संजीदा क्यों बैठे हो? हमें बाबे पे बहुत गुस्सा है। अच्छा तेनू कहता बाबे से गुस्सा? बाबे की कुछ मुखबरियों पर लोगों ने तहफुजात का इजहार किया है। अच्छा टैलेंटेड ना होते भी ने बापे की कोई मुखबरी दे कोई तहफुजात नहीं हो सकते। बाबा एक एक मुखबरी जड़ी है मोतियों की तरह परो के ले आंदा। नहीं, गुजरात से महकमा जंगलात ने कोई क्लैरिफिकेशन दी है जो आपने कुछ अरसा पहले कहा था कि दरख्त काट दिए गए। जी बिल्कुल। मुंडे मैं सार के सुहा कर देंगे, मैं थोड़ा दसी जा रहा। अच्छा फट्टा एडा पक्का नहीं बने होया हौली हौली बोल। 24 घंटे बाबा जागदा रहता है। क्यों बाबा चौकीदार है? नहीं उल्लू है। अरे उल्लू वाला की रौला है, जागदा रहता है। उल्लू जो है, उल्लू का शुमार उन जानवरों में होता है, उस फहरिस्त में होता है जो नॉकटर्नल कहलाते हैं। अख लाला है तो घंटा लग जाना। नॉकटर्नल वो परिंदे, वो जानवर होते हैं जो रात के वक्त बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त सोते हैं, तो उन्हें नॉकटर्नल कहा जाता है। जिनमें चमगादड़े हैं, उल्लू हैं, इवन सांप नॉकटर्नल है। सर बतख भी रात को जागती है। ये अब सवाल बराए सवाल कर रहे हो तो। गैंडा भी इंटरनल जानवर है। इंटरनल नहीं, नॉकटर्नल। सर ये नेक्टर्नल गैंडा है और नाल ओदे नेक्टर्नल खोता बैठा है। तो कोई एनिमल चैनल भी है? एनिमल्स में बहुत इंटरेस्टेड है और मैं देखता हूँ ये सारे चैनल्स जो हैं। ए बाबे ने भी तुसी एनिमल चैनल तो ही लभ्या इन्हां लोकां नूं दसोगे बाबा चीज की है? बाबा बड़ी मोटी चीज है। आज जो मुखबरी बाबा लेकर आया है सुनोगे हैरान परेशान हो जाओगे। चलो करो हमें हैरान परेशान। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 78 करोड़ रुपए की करप्शन बचा। किसने की है? ये नहीं दस सकता बाबा। क्या फायदा हुआ? बापे की जिंदगी का मामूल है बाबा, ना नहीं लेता किसी का। वो कौन सा महकमा है जहाँ करप्शन नहीं हो रही हो? बेवकूफ इंसान, हर जगह हो रही है।
तुम बंदों के नाम तो बताओ कौन है इन्वॉल्व। फैक्ट्स एंड फिगर सुनो बाबे दे 78 करोड़ रुपया। 78 करोड़ में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम उन लोगों में इंटरेस्टेड है जो ये कर रहे हैं। आप भी लभ्या करो कौन है ना लवी उस बंदे दा, नहीं तो डंडा सिर च मार के 2 हिस्से कर देगा डंडे दे। बाबा जी असल में पक्का हो गया ना। शाबाश मेरा बच्चा, हुण ना नहीं पता लग सकता किसी का भी। इन्हें पता ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए कि नैब में केस जा चुका है। ये हमारी अपनी इत्तला है कि नैब में केस जा चुका है। ये क्या खबर क्या है? 2 बंदे ने जनाब, इन्ना ही दसिया 2 ने। हाँ जी, सारे चेता वजीर जो है। अच्छा एक सेकंड, वजीर साहब सबसे चहेता वजीर, सबसे चहेता वजीर। और आगे भी तुमने कुछ किया था? वो मुझे नहीं पता मैं की है। नहीं अच्छा ना। नवाज शरीफ का सबसे चहेता वजीर है कौन? मेरा ख्याल नरेंद्र मोदी। क्यों भाई? इससे भी ज्यादा। ते जो है तेरे प्यो ने करना पक्की तो बहुत ही गल तू आप दस देना। दूजे बंदे का नाम लिया बाबा तेरिया लत्ता तोड़ देगा। सर जो है नहीं मैंने समझ आ गई। यार छोड़ो ना, गैर जरूरी तौर पे ऐसे बेतुकी बातें कर रहा है। दूसरा बंदा बताओ। सर एक आई जी नहीं सी जो बड़ा मशहूर सी। अच्छा जो बाद कुछ और भी रहा है। और कौन रहे? क्या मतलब? वो तो बिरा है। इधर मत जाते, तेरा खाना खराब हो गया। और क्यों बापे ने मरवाना? और क्यों बापे ने मरवाना? ओ एक सेकंड यार, बात सुनो। सिर्फ इतना बता दो, मार तो तुम्हें पड़ी गई है। क्यों? साबिक आईजी कौन सा है? और सारे डॉक्टर भी रहा है। डॉक्टर? टीके वाला नहीं, किताबा वाला। ना 10 से क्यों नहीं दिंदा? एक सेकंड, इसने पीएचडी कर रखी है? हाँ जी। और क्रिमिनोलॉजी में कर रखी है? हाँ जी। वो तो बड़ा मकूल आदमी है। तो सर गल तो बिरा दी हो रही हो, आप तो मकूल ही है। बाबा मैं ना लिया, चुप कसम मैं ना लिया। और तू तो उस भाई नु ओदे घर ले गया, पीछे रह के गया। तो मैं उसके भाई को नहीं जानता। सर ये वही केस है जो एनटीएस वाला है। वो क्या था? सर इन लोगों ने इस केस के अंदर जो भर्तियां की वो अपनी ही कंपनी को एनटीएस के ठेका दिया, उसके थ्रू लोगों को पास करवाया और नौकरियां बाकायदा बेची गई। वाह 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 वाह, कैसी मुखबरी है बाबे दी? बहुत अच्छी, लेकिन असल कमाल चेले का तुम्हारा कोई कमाल नहीं। ए ना मुखबरी वास्ते बाबा रात नु कब्रिस्तान च जांदा। वहाँ क्या करता है? अपने मंत्र दे नाल मुर्दे कब्र चो बाहर ले आना। यानी मुर्दे उठा लेते हो? उठा लेने आ। तो फिर वापस कैसे भेजते हो? वापस दा मंत्र पड़ी दा, मुर्दे अपनी अपनी कब्र च वापस हो जाते हैं। एक बार बाबा वापसी का मंत्र भूल गया। अच्छा, मुर्दा बह के सिगरेट पीने लग पे, कहना मंत्र पढ़ेगा तो जावांगा। ये पीछे जरा खड़ा है वो मुर्दा ही है। वो पीछे हाथ जोड़ के खलोता है, मुझे भेज दे खुदा बाबा मंत्र भूल गया जी। अच्छा। फिर बड़ी देर ला के बाबे नु मंत्र याद है, उन्नी देर जो कबर भूल गया। हुण बाबा जिथे भी जाता सारे मुर्दा पिछे पिछे ही। बाबे ने किसी प्राइवेट जगह से जाना हो ना, पहले मुर्दे नु चर्च पे आउंदा, और जो मुर्दे ने जाना हो तो बाबे नु पे आउंदा। शूम शड़क प्लक प्लक प्लक। बहुत अहम मुखबरी देने लगा है बाबा। आजकल एस्टेब्लिशमेंट ने करप्शन के खिलाफ कमर बांध रखी है बच्चा। वाह। और उसने नवाज शरीफ से कुर्बानी के 4 बकरे मांगे थे बच्चा। ये क्या बात हुई? 4 बकरे? कुर्बानी के बकरे क्या क्या मतलब? जिसमें 2 खाजे और 2 राने हैं, और अब उसमें एक और बकरे का इजाफा हो गया है बच्चा, और वो भी राना है। वो कौन सा राना है? राना टूंगा। यार ये तो फिर अब फजूल बातें। ते पापा एक बार क्या मैं नहीं दसता ना, पापा नहीं लेता किसी दे ले ना मेरा पुत्र। ये राणे कोटने भी बहुत होते। अच्छा चलो रानों का मत बताओ, खाजों का तो बता दो। खाजे केड़े आइसक्रीम खिलाते हैं। बाबा किसी का नाम नहीं लेता है, बाबे का मंशूर है। सॉरी मैं भी पक्का बाबा जी। शाबाश मेरा बच्चा। तो यार बता दो, कोई इलाका तो कौन उसका बता दो। लाओ तो मेरे कामों की तुसी की मुसीबत पाई हुई मैंने। खुदा डंडा मैंने दे, मैं अपने मारा। बाबा जी सिर्फ जगह दसी है। डंडा खुद मैंने दे, मैं अपने मारा। मैनू दसो। अच्छा जी, तो नवाज शरीफ ने क्या कहा आगे से? नवाज शरीफ ने कहा कि एक खाजा छोड़ दो, बाकी अय्यर का अय्यर ले जाओ। वाह 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 वाह, खाजा कौन सा छोड़ दो? सर गल सुनो, हुन एडे काके ना बनो कि तुम पता ना हो केड़ा खाजा है। कोई हिंट ही दे दो। इन्नी हिंट नहीं, ये बजाते खुद हिंट है। वाह 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 वाह, इस बात के अंदर पैगाम है
ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਸੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੱਪਿਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚਾ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਰਦਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਲੋਂਦਾ। क्यों नहीं मेरा पीछा छड़ रहा? तेरी वजह से नाल बाबा जलील हो गया। जा वापस चला जा, काली कलकत्ते वाली तरफ आने जाए खाली सज्जिया खब्बे झूम गया, झूम जा पड़क पड़क पड़क। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲੈ ਜਾਓ। गया कि नहीं गया? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ पे होता। कदीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।